तो वेबसाइट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर टू ग्रो योर बिजनेस। तो ज़्यादा मेरा फोकस इसी पे रहेगा कि वेबसाइट हाउ इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर बिजनेस, ज़्यादा मेरा फोकस इसी पे है। तो बिजनेस मॉडल्स हमारे पास हैं B2B, B2C, C2C, C2B एंड B2G एंड G2B। डू यू नो अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज? हाँ, business to business, one business unit sells its services or products to the other businesses. ठीक है, business to businesses, one business unit sells the, for example, if somebody some firm is manufacturing cars, but it is taking raw material from other company, so one company is selling products to another company, that is B2B. B2C is business to directly business to customer, okay, consumer. Then consumer to consumer. For example, you have an example of OLX. There you upload some products, the products that you do not want anymore, and one customer posts it there, another takes it from there. OLX is the example. Consumer to business. What is the example for that? जो हमारे पास होते हैं, जैसे for example हमारे पास For example, apple growers होते हैं। तो जो भी business को, हाँ, exactly. Then business to government and government to business. It is like sometimes government wants to accomplish some task in some particular city, तो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी फर्म को, ठीक है, to get the work done by that particular firm. That is business to government, and there are some other examples government to business. ठीक है, ये business models हैं। आपका business कहाँ पे फिट होता है, you have to see that model and you have to study about that particular model, जो भी आपका idea launch होगा. Next, two important factors are there related to growth of your business through a website. ठीक है, SEO and SEM. SEM मैंने second number पे रखा है, but it should be at the number 1 because it's an umbrella term. Because SEM includes search engine optimization, and also it includes another term which is called as PPC, pay per click. ठीक है, तो SEO जो है search engine optimization. Whenever you launch a business, you have a website or a social media page or any other page which is going to promote your business. उसके लिए आपको SEO का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. SEO means search engine optimization. Whenever somebody tries to search something in the Google or Microsoft Bing या कोई और जो भी आपका सर्च इंजन है उसमें वो ट्राई करते हैं, तो उसमें जब सर्च करेंगे तो योर बिजनेस वेबसाइट जो भी है आपका, दैट शुड कम अंडर दैट सर्च. For that there is term search engine optimization. Further it is divided into these 4 parts: on page SEO, off page SEO, technical SEO and user interaction signals. First is on page SEO. You have to take care of the site content. Site means website content. उस पे आप content क्या रख रहे हो, ठीक है, that is the number 1 thing. For example, if he is selling the bats, ठीक है, only bats or anything else? Bats. Sports के, हाँ, related to sports. क्रिकेट ओनली. हाँ, तो इनका फोकस अभी क्रिकेट पे है. अगर ये वहाँ पे बैडमिंटन रखना शुरू हो जाएंगे ना, दैट इज नॉट ए गुड अप्रोच. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट. दैट मस्ट बी टेकन केयर. कीवर्ड्स वो होते हैं जब आप गूगल में सर्च करते हो, ठीक है, तो आप अपनी वेब पेजेस पे you must be having some web pages. ठीक है, वेबसाइट पे आपके नंबर ऑफ वेब पेजेस मे बी 500, 300, 200 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर website. ठीक है, तो मे बी ही इज हैविंग 100 पेजेस ऑफ वेब पेजेस इन हिज वेबसाइट. तो उस पे आपको जो कीवर्ड्स रखने हैं हर वेब पेज पे, उस एक पर्टिकुलर वेब पेज पे जो भी प्रोडक्ट हमने रखा हुआ उसके रिलेटेड होने चाहिए. ठीक है, सो दैट व्हेनेवर दैट कीवर्ड इज बीइंग सर्च्ड इन द गूगल सर्च इंजन, तो वो वहां से आपको रिडायरेक्ट कर सके आपके उस पर्टिकुलर पेज पे. अगर आपने कोई भी रेलेवेंट कीवर्ड नहीं रखा, आपकी जो साइट है दैट विल नॉट कम अंडर दैट सर्च. ठीक है, उस सर्च में नहीं आएगी. तो टाइटल टैग्स, जो आप टाइटल रखते हो अपने पेज का, ठीक है, वो आपको देखना है जिसके रिलेटेड वो पेज है, आपको टाइटल वहां पे रखना है. मैं इसकी एग्जांपल शो करूंगा आपको, ठीक है, आप बोलोगे बोल के चले जाते हैं. आई विल शो यू एग्जांपल थ्रू के कोडिंग में कहाँ पे ये चीज़ें रखनी होती हैं. यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज़ें हमने करवाई हैं रिसेंटली. वहाँ 2 लड़कियाँ, पता नहीं उनको याद है कि नहीं है, बिकॉज वी हैड ए कोर्स ऑन स्किल डेवलपमेंट जहाँ पे हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवाया था, तो आई स्टिल रिमेंबर. तो मेटा डिस्क्रिप्टर्स, अगेन मेटा डिस्क्रिप्टर्स वेब पेज के अंदर एक कोडिंग पार्ट होता है. ठीक है, तो HTML आती है यहाँ पे किसी को? बहुत पहले. आई विल शो, एक टेम्पलेट दिखाएंगे आपको एग्जांपल के लिए. मेटा डिस्क्रिप्टर्स वो अगेन आपको दिखाता है कि आपकी विजिबिलिटी ऑफ योर वेब पेज ऑन कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर आपके मोबाइल या टैबलेट पे किस तरीके से आएगी. ठीक है, अर्लियर हमारे पास क्या होता था कि फिक्स्ड साइज वेब पेजेस होते थे, तो हमारा कंप्यूटर का एक ही साइज होता है. ठीक है,
तो उसके साइज मींस इनका फिजिकल साइज नहीं, स्क्रीन साइज, इनका रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फिक्सड साइज बनाते थे। और फिक्सड साइज होने की वजह से जब हम उसको मोबाइल या टैबलेट पे हम उसको ओपन करते थे, आधा पार्ट उसका कट जाता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि कोई वेबसाइट आप मोबाइल पे खोलते हो और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिखती है, तो वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्टर्स जो है वो वीक रखे गए हैं, उनका यूज नहीं किया गया प्रॉपरली। तो आई विल शो कि कैसे यूज होते हैं, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। यूआरएल्स अगर आपने वहां से फॉर एग्जांपल इफ ही इज सेलिंग सम आइटम, बैट सेल कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कोई कैटेगरी ऑफ बैट है जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, बट इन्होंने वहां पे एक यूआरएल रखा हुआ अपने पेज पे, जो वहां से यूआरएल मींस लिंक, हाँ लिंक रखा हुआ है जिस पे क्लिक करके एक दूसरी किसी हो सकता है इनका फ्रेंड हो या समबडी एल्स या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जहां पे वो डायरेक्ट करे। एक तो ये अपने फ्रेंड का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं उससे, ठीक है, और जो यूजर फॉर एग्जांपल आई एम ए कंज्यूमर, हाइपरलिंक, हाँ ठीक है, एचरेफ हाइपरलिंक, जो टेक्निकल टर्म इज हाइपरलिंक बट फॉर लेमैन इट्स लिंक सिंपली। तो जो यूआरएल इन्होंने रखा हुआ किसी अपने फ्रेंड का या किसी और का बिजनेस रखा हुआ है, तो दैट पर्सन इज आल्सो गेटिंग बेनिफिट बिकॉज ऑफ हिज वेबसाइट, और जो कंज्यूमर है ही इज आल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड जब वो उस पे जा रहा है। एंड इफ ही इज नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट जो उसको सर्च करना है उस पेज पे, बट एटलीस्ट ही इज गेटिंग सम पाथवे टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट जहां पे वो अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपने जो लिंक रखा हुआ है, मार्केट रिसर्च करके रखा हुआ कि इफ यू हैव केप्ट दैट लिंक कि उसकी जो कॉस्ट है एज मिनिमम एज पॉसिबल और क्वालिटी अच्छी है, तो देन इट्स इज गोइंग टू बेनिफिट यू आल्सो, क्योंकि वो रिव्यू करेंगे हाँ इस साइट पे ये नहीं मिलता है, देन इट कैन गो भी। एक वेबसाइट हुआ करती है माई स्मार्ट प्राइस, आपने कभी विजिट की है? नहीं किया तो अगर करना, आज का मुझे पता नहीं, बट आई यूज टू विजिट दैट mysmartprice.com। तो जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वी लुक एट Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी और पे, एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, बट समटाइम्स हम उसको Amazon पे खरीदते हैं एंड देन आफ्टर फ्यू डेज वी सी दैट्स द सेम प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट इज सेलिंग एट लो प्राइस। तो माई स्मार्ट प्राइस क्या कहता है, सारी जो वेबसाइट्स हैं उनसे कंपैरिजन करके दिखाता है, एंड वेयर एवर यू फाइंड इट एट मिनिमम कॉस्ट यू कैन बाय इट फ्रॉम इट, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई यूज टू विजिट माई स्मार्ट प्राइस बिफोर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon या फ्लिपकार्ट। तो आप देखिए मुझे जाना कहाँ है, फ्लिपकार्ट या Amazon पे, बट आई एम विजिटिंग माई स्मार्ट प्राइस। माई स्मार्ट प्राइस फ्री में काम वो लोग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट एंड Amazon कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, बट माई स्मार्ट प्राइस जो है वो फ्री में पैसे कमा रहा है, ठीक है। पैसे कैसे कमा रहा है, व्हेन यू विजिट सम वेबसाइट, जितना ट्रैफिक ज्यादा जाएगा, हाँ पे पर क्लिक जो मॉडल होता है वो बाद में समझाते हैं आपको, ठीक है। हेडर्स, इंटरनल लिंकिंग, इमेजेस, पेज स्पीड, इमेजेस आपको रखनी है उतनी रेजोल्यूशन की और उतनी क्या बोलते साइज की कि वो लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लें, ठीक है। कभी कभी आपका अगर स्पीड कम है, फॉर एग्जांपल किसी के इंटरनेट स्पीड, तो आपका वेब पेज पे उतने ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए, उतने ही हो जो आपके करंट सिनेरियो में जो लोग आपके ऑडियंस है जितना उनके पास इंटरनेट स्पीड है उस हिसाब से वो पेज स्पीड जो है वो रेंडर जल्दी होना चाहिए, पेज रेंडरिंग जो है वो इमीडिएटली होनी चाहिए। ये हो गया ऑन पेज में जो वेबसाइट का पेज आपने डेवलप किया उस पर ये चीज़ें होनी चाहिए। ऑफ पेज क्या, बैकलिंक्स अगेन जो मैंने लिंक की बात की कि आपको दूसरे के ऊपर अगर ऑफ द पेज जाना है तो बैकलिंक्स प्रॉपर होने चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग, जो आपका कंटेंट है तो उसके रिलेटेड अगर आपने यू हैव पोस्टेड देयर वीडियोस, पॉडकास्ट और सम अदर मीडिया अगर आपने रखा हुआ है वहां पे, तो व्हेन एवर एक वेव चलती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जब मे बी IPL सीजन आता है आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकते होंगे, ठीक है, या कोई क्रिकेट ये चल रहा है टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो एक टाइम होता है उस टाइम पे आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम होता है, सीजन होता है कि जब आपका वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। तो उसके रिलेटेड अगर आपने पॉडकास्ट या कोई वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स बना के रखे हुए हैं एंड प्रॉपर कीवर्ड्स रखे हुए हैं, तो जब वो सीजन आएगा पीपल विल सर्च इन द गूगल, डेफिनेटली आपको वहां पे रिडायरेक्ट करेगा। और अगर आपने पूरा क्लियर बिल्कुल अप टू द पॉइंट अगर आपने डिस्क्राइब किया अपना प्रोडक्ट वहां पे, पीपल आर गोइंग टू परचेज दैट। हाँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल समटाइम्स यू विजिट यूट्यूब चैनल, ध्रुव रथी का नाम सुना है आपने? ठीक है, ही इज ए फेमस यूट्यूबर और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता है, कितनी मेहनत करता है वो, तो इतना फेमस, कितने मिलियन सब्सक्राइबर, 13 मिलियन के मोर देन दैट, 13 मिलियन इज ह्यूज नंबर है। और उसका रेवेन्यू आप देखना कभी उसके गूगल में देखिए तो बहुत है ना, बहुत ज़्यादा। तो उसका जो पर्पज़ है उसकी एक तो क्लैरिटी है, जब वो बोलता है कितनी क्लैरिटी है, एंड ही नेवर रिपीट्स ए वर्ड, वो जब बोलता है ना वो रिपीट नहीं करता है। और जो बैकग्राउंड में उसकी फुटेज चल रही होती है ना, वो उसने फुटेज कहीं से ली नहीं है, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो कॉपीराइट के बिना मटेरियल अवेलेबल होता है, बस उसको वो रखता है वहाँ पे, एंड देन उसको एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग है, एंड जो उसका स्पीकिंग स्किल्स हैं उसके वो है।
you just see other यूट्यूबर्स जिनके अच्छे अच्छे स्किल्स हैं. देयर आर अदर मैनी यूट्यूबर्स, जैसे कोई कुछ ऐसे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता है, दे रिपीट द सेम थिंग. हाँ, एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करेंगे, उनका ग्रो नहीं करता है चैनल. ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है. देन पब्लिक रिलेशन एटसेट्रा. पब्लिक रिलेशन हो गया कि आपका सोसाइटी में कैसा रिलेशन है, थ्रू दैट यू मार्केट योर प्रोडक्ट. टेक्निकल एसईओ, सबमिटिंग साइट मैप टू गूगल. If you have some location, you have a physical store, you have to keep that how to reach point in your website. Then page speed, again आगे आपका पेज रेंडरिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए. मोबाइल फ्रेंडलीनेस, दैट इज अबाउट मेटा डिस्क्रिप्टर्स. अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्टर्स रखे हैं अपने वेब पेज पे, आपका मोबाइल किसी भी रेजोल्यूशन का है, तो योर पेज विल रेंडर ऑन द मोबाइल स्क्रीन विद फुल कंटेंट. जो भी आपका वेबसाइट पे कंटेंट है, उसका कंटेंट सारा का सारा आपके मोबाइल पे आएगा. तो जो वेबसाइट्स प्रॉपरली मोबाइल पे खुल जाती हैं, उनने मेटा डिस्क्रिप्टर्स रखे होते हैं. जो मोबाइल पे प्रॉपरली नहीं खुलती हैं, दे आर मिसिंग दिस मेटा डिस्क्रिप्टर्स. मैं आपको वेब पेज पे दिखाऊंगा मेटा डिस्क्रिप्टर्स कहाँ होते हैं, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद. फिक्सिंग डुप्लीकेट कंटेंट. डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए. आप यू माइट बी हैविंग सम इंस्टाग्राम पेज. कितने लोगों के पास इंस्टाग्राम पेज है या फेसबुक पेज है? मोस्टली सबके पास ही होगा, आज सबके पास होता है. तो इंस्टाग्राम पेज पे देयर आर ऑप्शंस, रील, पोस्ट, स्टोरी. अगर आप एक ही वीडियो को रील भी डालेंगे, पोस्ट भी डालेंगे, स्टोरी भी डालेंगे, आपका वो वीडियो ग्रो नहीं करेगा. बट इफ़ यू कीप दैट वीडियो ओनली एज रील और ओनली एज पोस्ट या ओनली एज स्टोरी, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे. ठीक है, ये चीज़ करके देखना. जिनका ग्रो कर गया है पेज, वो लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि इफ़ देयर इज रेपिटेशन इन द कंटेंट, तो वो क्या होता है कि 100 व्यूज़ एक पे आएंगे, 200 एक पे आएंगे, 500 एक पे आएंगे, बस पेज वहीं पे एंड. बट इफ़ यू हैव अ सिंगल वीडियो एज पर द वीडियो ड्यूरेशन और उसका जो स्टाइल है, क्योंकि रील का स्टाइल डिफरेंट है. ठीक है, रील का देखा आपने कितने इमीडिएटली फास्ट आता है, फिर जूम इन होता है, जूम आउट होता है, फ्लैश होता है, ऐसे होता है, ये होता है. तो दैट शुड बी पोस्टेड एज रील. और जो एक नॉर्मल वीडियो है फुल रेजोल्यूशन में, दैट शुड बी पोस्टेड एज पोस्ट. हाँ, पोस्ट. तो स्टोरी इज समथिंग डिफरेंट. तो एज पर द वीडियो कंटेंट यू हैव टू अपलोड योर कंटेंट. हाँ, तो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज ऑन योर वेब पेज या फिर whether it is your on social media page. Understanding Google scrolling. Google क्या करता है कि Google एक जब भी whenever you post new web pages, for example if he is having a website and he wants to add some more web pages, तो उसमें क्या होता है कि इनने ऐड कर दिए, तो Google after regular intervals sends a bot. बॉट मीन्स एक उसका कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसके जरिए से वो क्या करता है कि उस क्रॉलिंग करता रहता है पूरी www है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, उसको क्रॉल करता है. क्रॉल करने के बाद इट लुक्स फॉर द न्यूली जनरेटेड पेजेस. ठीक है, और न्यूली जनरेटेड पेजेस जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल ही एडेड 2 और 3 पेजेस, उन 2 और 3 पेजेस को वो बॉट जो है वो क्या करेगा, रीड करेगा एंड उसमें से कीवर्ड्स जो हैं वो उनको उठाएगा. इनमें रखा होगा कश्मीर विलो, बैट, सम डिज़ाइन का कुछ होगा, तो वो उठा के रखेगा. एंड व्हेन एवर समबडी गोज टू गूगल एंड ही सर्चेस ए कश्मीर विलो मेड बैट, तो वो वहाँ पे उस पेज पे डायरेक्ट करेगा. तो वो गूगल को ऐड करता है और दैट इज कॉल्ड एज क्रॉलिंग. कि गूगल का एक बॉट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम. बॉट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, नॉट ए रोबोट चलता फिरता. एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनली रन करता है और वो सर्च करता रहता है कि कौन से नए पेजेस हमारे मार्केट में आ चुके हैं. ठीक है, हमारे वेब वर्ल्ड वाइड वेब पे आ चुके हैं. ठीक है, देन यूजर इंटरेक्शन. यूजर बिहेवियर इज हाँ, वो ऑटोमेटेड होता है. गूगल का एक AI जनरेटेड प्रोग्राम है. हाँ, तो वो क्या करता है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ना, तो वहाँ पॉपअप आता है, हाय आई एम योर असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू. हाँ, चैटबॉट. ऐसे ही वो चैटबॉट दिखता नहीं है, बट इंटरनली देयर इज अ प्रोग्राम. हाँ, तो उसको नाम दिया कि एक बॉट है गूगल का, तो वो क्रॉल करता है. वो गूगल का एक एल्गोरिदम है बैकएंड पे. ठीक है, तो वो उसका काम ही वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, दैट इज वेब ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स. वर्ल्ड वाइड जिसको www हम कभी कभी करते हैं ना, HTTPS या www. फिर सम डोमेन नेम. ठीक है, तो उसका पर्पज ही यही है कि वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च करना. उस पर जब भी जो भी नए पेजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसने आज सर्च किया है एंड दे हैव ए काउंट ऑफ 10 मिलियन पेजेस टोटल. वहाँ तो बहुत सारे हैं, हाँ, इन्फिनाइट है मैं कह रहा हूँ. बट इफ दे हैव ए नंबर 10 मिलियन, आफ्टर सम टाइम्स इफ द नंबर इंक्रीजेस रेगुलर इंटरवल्स में, तो दैट बॉट गोज ऑन सर्चिंग के कौन से पेजेस नए ऐड हुए हैं, और जब वो ऐड हुए हैं उनके ऊपर जाके उनको रीड करता है. रीड करके वो अपने रिपोजिटरी में जो उनका लॉग है, उसमें लॉग में वो कीवर्ड्स डाल देता है, ताकि अगर और उस कीवर्ड जो डाला, उस कीवर्ड की एंट्री होती है, एक टेबल बनता है लॉग जिसको बोलते हैं, उस लॉग के आगे इनका URL होगा उस पेज का.
ठीक है। तो उस लॉग का कीवर्ड जब भी सर्च हुआ तो उसका यूआरएल वहाँ पे फैच होता है, हाँ, तो वो जाता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा हाउ इट वर्क्स थोड़ी देर के बाद। लेट मी फिनिश दिस प्रेजेंटेशन। यूजर बिहेवियर इज एग्जामिन्ड बाय गूगल, क्लिक थ्रू रेट एंड बाउंस रेट। क्लिक थ्रू रेट होता है कि आपके, फॉर एग्जांपल इफ यू रैन एन एड ऑन योर सोशल मीडिया पेज, तो वो कितने लोगों के पास गई, उसके ऊपर कितने क्लिक हुए एंड कितनी बार वो लोगों को शो हुई। एक ही ऐड यू माइट एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स। तो फॉर एग्जांपल एक ऐड है, वो उसके ऊपर 5 बार क्लिक हो गया और वो कितनी बार किसी उसी यूजर के पास गई है 100 टाइम्स, तो द क्लिक थ्रू रेट इज 5%। 100 टाइम में से उसने 5 बार उस पर क्लिक किया, ठीक है। बाउंस रेट मीन्स, बाउंस रेट जो है आपका बहुत मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। बाउंस रेट मीन्स आपकी वेब पेज पे कोई यूजर जाता है एंड इमीडिएटली जाने के बाद विदाउट एक्सेसिंग, विदाउट रीडिंग और विदाउट स्टेइंग रिटेनिंग ऑन दैट वेब पेज, बाउंस बैक करता है, वापस आता है, क्योंकि उसको पहले पेज का जो लुक है ना वो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट हो सकता है अच्छा होगा। तो दैट्स व्हाई देयर कम्स द रोल ऑफ CSS इन वेब डिजाइनिंग। CSS जो क्या करता है, वेब डिजाइनिंग को एक अच्छा शेप देता है, हाँ, उसकी अच्छी डेकोरेशन बनाता है। अदरवाइज आपका जो है वो कंटेंट जो है वो एक स्केलेटन रह जाता है। Then there comes SEM, search engine marketing. वहाँ पे SEO and PPC. SEO is only related to organic search. Organic search means there is no role of paid promotions. But on the other side, you have pay per click. Pay per click is also added to the SEOs in order to increase the visibility. Like you give some advertisement by paying some money. In Facebook page आप उसको promote करते हो, 100 रुपीज़ दोगे तो वहाँ लिखा होता है कि 100 रुपीज़ में आपका ये up to these many audience के पास जाएगा, बट जितना लिखा होता है उससे ज़्यादा ही जाता है वो, ठीक है। तो पे पर क्लिक का जो डिफरेंट मॉडल है, एक क्लिक पे कितने पैसे आपको खर्च हो जाएंगे, दैट वेरीज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। तो यूजुअली आप कोई वेब ये सोशल मीडिया पेज बना रहे हो, किसी ने कभी बूस्ट किया है पोस्ट अपना, आप ऐसे हैं बूस्ट किया है, कितने पैसे खर्चे? 1400 खर्चे हैं। कितनी रीच हुई उसकी? 33K। कितने ये थे क्या बोलते उसको, प्रोडक्ट, ये वीडियो था किसके रिलेटेड? स्पाइसेस, ठीक है। तो 1400 खर्च के आपको 33K हुए रीच। तो मैंने एक बार ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने 100 रुपीज़ खर्चे हैं और 100 रुपीज़ पे मैंने 25K तक रीच लिया, 29 इनफैक्ट 29K। तो उस हिसाब से मैं इनसे बेटर हूँ ये इनसे। तो वहाँ पे क्या था, क्योंकि इससे 1400 खर्चा है, नहीं ऐसा नहीं है कि आपने गलत किया है, इट डिपेंड्स समटाइम्स, ऑटोमेटिक है ना आगे नहीं इसका एल्गोरिथम होता है। तो हो सकता है वहाँ पे जो कीवर्ड जब जिस टाइम पे हम डालते हैं या कोई चीज़ होगी वो थोड़ा सा मेरा बेटर होगा इनके कंपैरिजन में, या मुझसे भी कोई अच्छा होगा जिसने इससे भी ज़्यादा। जब आप YouTube पे, हाँ, जब आप YouTube पे अपलोड करते हो वीडियो, तो उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर कीवर्ड्स देने होते हैं। मैं आपको Organic search delivers 53% of the website traffic and rest 47% is delivered through PPC, pay per click, ठीक है, through SEM. SEM includes pay per click, and that's the reason जो हमारा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है that is generating a revenue of $122.11 billion. This is the current report, हाँ, जो current report है। अगर आप USA की बात करें, क्योंकि USA में more than 90% जो यूजर्स हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द परसेंटेज ऑफ यूजर हु आर यूजिंग इंटरनेट इन इंडिया? कुछ आइडिया है क्या परसेंटेज है? नहीं, स्टिल इट इज़ अराउंड 40 to 50%, बहुत कम है अभी भी। एंड जस्ट इमेजिन कि यूएस में अगर 98% या 95% के अराउंड चल रहा है, तो हमारे इंडिया में अभी 40 to 50% के बीच में ही है। एंड जस्ट सी कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ अभी है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। कंटेंट क्रिएटर जो हैं, वेदर यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पे जो लोग हैं या फिर जो लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके लिए कितना भी स्कोप है, क्योंकि अभी जो 40 to 50% लोग हैं इनको भी 100% तक जाना है। किसी के पास खाने के लिए आज कुछ नहीं है, बट उसको इंटरनेट का रिचार्ज करने के लिए पैसे हैं, वो कुछ भी करता है, दिन में 500 रुपये कमा रहा है, मगर वो शाम को खाने के लिए अगर एक ही रोटी खा रहा है बट इंटरनेट का रिचार्ज कर रहा है। इज़ दैट ट्रू? हाँ, तो ये कुछ फिगर्स हैं। जो लोग सुबह उठते हैं, उनको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है इन USA, दे फर्स्ट सर्च अमेजन, ठीक है, 61% जो है वो अमेजन पे सर्च करते हैं, देन 49% जो है सर्च इंजन, देन वॉलमार्ट, यूट्यूब, फेसबुक, द परसेंटेज इज लाइक इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले अमेजन, देखो अमेजन ने कितना बड़ा मार्केट शेयर अपना रखा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट इज येलो पेजेस। एनीवन नोज अबाउट येलो पेजेस? दोज हु आर हैविंग वेबसाइट्स। तो
SEOs पे मेन फोकस रहता है। जब भी आप किसी वेब डेवलपर को वेब डेवलप करवाते हैं तो आपका फोकस रहता है SEOs पे कि SEOs आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। SEOs पे वो ऑन साइट कंटेंट, जो ऑफ साइट टेक्निकल, ये वो जो 4 चीज़ें बताई मैंने, मेन फोकस उस पर रहता है। बट देयर इज़ वन मोर थिंग, येलो पेजेस। येलो पेजेस क्या है कि एक थ्रिव नाम की कंपनी है, yp.com उनका URL है। तो वहाँ पे क्या करता है कि इफ़ यू हैव ए बिजनेस यूनिट, इफ़ यू हैव ए वेबसाइट, आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है एंड देन दे कलेक्ट योर लोकेशन एंड योर फ़ोन नंबर। तो आप जब भी लोग सर्च करते हैं कहीं पे तो आपको वहाँ पे सर्च में आपका बिजनेस और आपका फ़ोन नंबर आ जाता है, सो दैट आपको डायरेक्टली वहाँ कॉल कर सके। बट यू मस्ट हैव सम रजिस्ट्रेशन विद दिस येलो पेज एंड इट्स फ्री। तो अगर किसी का है तो ये एक एड ऑन है ऑन SEOs। तो इसका प्रोसेस जो है, द बेनिफिट्स योर बिजनेस कैन रिसीव फ्रॉम बीइंग लिस्टेड ऑन yellowpage.com। लिस्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, गेट फाउंड फॉर बाय मोर कस्टमर्स, इंप्रूव योर लोकल SEOs, एडवर्टाइजिंग कैपेबिलिटीज, वही चीज़ें करता है, बट एक और एडिशनल एड ऑन है ये। और इसमें आपको डायरेक्टली फ़ोन नंबर देना पड़ता है और ये आपका लोकेशन, बिजनेस नेम एंड फ़ोन नंबर आपको दिखा देगा। yp.com। तो द स्टेप्स टू रजिस्टर ऑन दिस, आप जब जाएंगे yp.com पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड देन पासवर्ड कंफर्मेशन, जिप आपका पूछता है कहाँ पे ये है एंड जिप से आपका ये लोकेशन ट्रेस करता है। उसके बाद आपका लिस्टिंग हो जाती है और लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पे ऐसा, जब आप ये ज्वाइन YP करोगे, गेट योर फ्री लॉगिन वहाँ पे आएगा, इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद करने के बाद आप यहाँ पे बिजनेस नेम डालोगे, बिजनेस फ़ोन नंबर डालोगे, गेट माई फ्री लिस्टिंग, तो आपका इसके बाद लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे, येलो पेज। एंड दे हैव देयर ओन एल्गोरिथम जो प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो रेकमेंड करते हैं पेजेस को। रिकमेंडेशन एल्गोरिथम होता है कंप्यूटर में जो रेकमेंड करता है। तो उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये इस तरीके से फिलिंग करने आएगा एंड दीज आर द थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क। वेबसाइट पूछेगा, बिजनेस कैटेगरी पूछेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस एंड ऑल अदर डिटेल्स, ये सबके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाएंगी एंड कंटिन्यू करो उसके बाद, एंड कंटिन्यू करने के बाद यू विल बी लिस्टेड। नेक्स्ट पार्ट इज सोशल मीडिया, ठीक है। येलो पेजेस yp.com, इस पे भी आप एक रख सकते हो, ये भी लोग भी आपको रेकमेंड करते हैं आपकी वेबसाइट को। सोशल मीडिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये है सोशल मीडिया, ठीक है, इन सबसे आप फेमिलियर हो। सोशल मीडिया से आप फेमिलियर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम, टम्बलर, टिकटॉक एंड बहुत सारे अनगिनत हैं और भी बहुत सारे हैं। तो इनके आगे मैंने इनके लिखा हुआ है कि आपके फैन पेज हो सकते हैं, इस पर वॉल पोस्ट होते हैं, सोशल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती है। लिंक्डइन क्या करता है, दैट इज ए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे 900 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं इस टाइम पे। एंड ट्विटर है, ट्विटर का एक अलग है, वहाँ इन्फ्लुएंसर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बाय ट्वीटिंग। उसका अपना इसका आइडिया है ना, ट्विटर का क्या है, इंस्टाग्राम का क्या है, फेसबुक का क्या है। लिंक्डइन प्रोफेशनल इंटरफेस है, ठीक है, वहाँ प्रोफेशनल लोगों का ये है। एंड लिंक्डइन पे बहुत सारी हायरिंग चलती है। इफ़ यू हैव ए स्किल, अगर आपके पास आज डेटा साइंटिस्ट है, मेरे अपने डोमेन से डेटा साइंटिस्ट है या वेब डेवलपमेंट का अगर आपके पास स्किल है तो आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं वहाँ पे। ट्विटर है, यूट्यूब है, ब्रांडेड कंटेंट आप डाल सकते हो, वीडियो क्लिप्स डाल सकते हो यूट्यूब पे, अर्निंग थ्रू सब्सक्राइबर्स, एडवर्टीजमेंट्स होती है उसमें। तो यूट्यूब चैनल है आप लोगों के, बनाइए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए एंड इंस्टाग्राम पेज बनाइए। एंड हियर आई विल टेल यू कि स्टार्ट बाय क्रिएटिंग ए पेज ऑन इंस्टाग्राम फर्स्ट, और इंस्टाग्राम पे आप करोगे उसको, यू कैन कनेक्ट इट विद द फेसबुक ऑल्सो, यू नीड नॉट टू क्रिएट अनदर सेपरेट पेज ऑन द फेसबुक, क्योंकि इनका जो ओनर है दैट इज मेटा, ठीक है। तो आपको एक पेज क्रिएट करोगे आप इंस्टाग्राम पे। लास्ट टाइम आई हैड ए टॉक विद सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू, तो वो हमारे स्टूडेंट्स थे, तो हमने एक पेज उसी टाइम क्रिएट किया था। बट आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी एट दिस टाइम बिकॉज एवरीवन नोज हाउ टू क्रिएट ए पेज ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, क्या ज़रूरत है, नहीं दिखाने की ज़रूरत है ना, इसलिए मैंने वो कट किया है इसमें से। तो आपको इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना है, देन देयर इज एन ऑप्शन कनेक्टेड टू द फेसबुक, इफ द सेम नेम इज अवेलेबल ऑन द फेसबुक देन यू विल बी अलाउड, अदरवाइज ये सजेशन देगा कि आपको पेज डिफरेंट कैसे क्रिएट करना है, सम नेम सजेशंस देगा। तो वंस यू क्रिएट ए पेज ऑन इंस्टाग्राम, द सेम पेज विल बी क्रिएटेड ऑन द फेसबुक, ठीक है, लिंक्ड विद दैट पर्टिकुलर अकाउंट, और वंस यू पोस्ट समथिंग ऑन द इंस्टाग्राम, द सेम पोस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द Facebook page. And then you have to my suggestion is, if you have a business page and if you want to grow your business, you are a newcomer, तो उस टाइम आपके पास ना तो सब्सक्राइबर्स हैं और सब्सक्राइबर्स आएंगे भी नहीं। अगर आपने पेज क्रिएट कर दिया, उस पर पोस्ट करते रहो आएंगे भी नहीं। जो आपके पास वीडियोस आप देखते हो या कंटेंट आप देखते हो किसी पेज पे 251K 300K इतने व्यूज़ आ गए हैं, एंड यू जस्ट इमेजिन कि यार मेरे वाले पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट। आपको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देनी है।
इन्होंने अगर बिजनेस ग्रो किया ना, तो इन्होंने अपना बिजनेस हो सकता है डिजिटली, मुझे नहीं पता डिजिटल कैसे, बट अगर अपने लोकल मार्केट के अराउंड इन्होंने अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनके थ्रू इन्होंने कितनी मार्केटिंग की होगी, स्टार्टिंग में मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा किया होगा, ही मस्ट हैव इन्वेस्टेड हिज मनी, हिज टाइम एंड और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो की होंगी, कॉन्टैक्ट्स अपने एक्सप्लोर किए होंगे मार्केटिंग के लिए, एंड मार्केटिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू गो द मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो फर्स्ट स्टार्टेड विद द बाय पोस्टिंग एडवर्टीजमेंट एंड स्टार्टेड विद द ₹100, ठीक है, नॉट 1400 या 1500, स्टार्टेड विद द 100 में आपको 7000 8000 के अराउंड रीच आती है। दे शो देयर ऑन देयर पेज कि इफ यू स्पेंड ₹100 या ₹90, ओनली इट विल रीच अप टू 1600 पीपल, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल गो बियॉन्ड 1600, उससे ज़्यादा ही जाएगा, कम तो नहीं जाएगा, ठीक है। आई नो अबाउट द एल्गोरिथम, मैंने एल्गोरिथम स्टडी किया हुआ है इनका थोड़ा बहुत, रिकमेंडेशन सिस्टम होता है इनका, हाउ दे रिकमेंड, तो वो मुझे पता है। नाउ द थिंग इज, अगर आपने एक बार पोस्ट किया, अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग लाइक्स ऑन दैट, क्योंकि रीच होगा तो कुछ लोग लाइक करेंगे, मे बी 500-600 आपको लाइक्स आ गए उस पर अराउंड। देन जस्ट सी हु आर द पीपल जिन्होंने उसको लाइक किया, उनको इन्वाइट कर दो, क्योंकि उन्होंने लाइक किया है, दैट मीन्स दे हैव फाउंड समथिंग गुड इन योर कंटेंट, उनको इन्वाइट डाल दो, ठीक है। हो सकता है उन्होंने विजिट किया बट दे डिड नॉट फॉलोड योर पेज, उनको इन्वाइट डाल दो, ठीक है। बहुत सारे उसमें से रिजेक्ट करेंगे, बट अराउंड 10% 5% उसमें से सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। वन टाइम बूस्ट योर पेज ऑन इंस्टाग्राम, सेकेंड टाइम बूस्ट द सेम पेज ऑन द फेसबुक बाय स्पेंडिंग अनदर ₹100, ठीक है। अब क्या होगा कि वहाँ पे भी ऐसे ही आपको लाइक्स आएंगे, सेंड दम इनवाइट करो उनको, उसमें से भी 10-15%, 5%, 20% लोग वापस फॉलो करेंगे आपको, ठीक है। तो यू आर गेटिंग सब्सक्राइबर्स। तो पहला आपका पर्पस होना चाहिए सब्सक्राइबर्स। तो जो आपका ये जो एडवर्टीजमेंट होती है, दे गिव यू ऑप्शंस, आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको मैसेजेस चाहिए, आपको कॉल चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट चाहिए, क्या चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली पहले आपको सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। आफ्टर दैट वंस यू गेट अ सब्सक्राइब, उसके बाद आप वहाँ मैसेज का बटन रखो ताकि आपको कॉन्टैक्ट करें, एंड बी प्रॉम्प्ट ऑन रिप्लाइंग द कस्टमर्स, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अभी कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है और आप 3 दिन के बाद रिप्लाई करते हो, वो दोबारा आपको मैसेज नहीं करेगा, दोबारा आपका पेज भी नहीं देखेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए। हाँ, एक बार इंस्टाग्राम पे बूस्ट करो, एक बार फेसबुक पे, एक बार इंस्टाग्राम पे, एक बार फेसबुक पे। एंड व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, इफ़ यू स्टार्ट अर्निंग 1000, अगर आपने अर्निंग की सपोज, तो आउट ऑफ दैट 1000 स्पेंड 100 अगेन ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो जो आपका एड पेड होता है, उससे जो आपको व्यूज़ आते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट, बट वंस योर पेज इज़ बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, तो एस्टेब्लिश हो गया, सेटअप हो गया, उसके बाद आपको एडवर्टीज करने की ज़रूरत नहीं है और आपको खुद ही व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देन पीपल स्टार्ट क्या कहते हैं उसको, रिकमेंड करना शुरू हो जाते हैं दूसरे लोगों को, और आपके पेज की रैंकिंग भी खुद ही वहाँ से बढ़ती है, ठीक है। जो लेडीज़ है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक एग्जांपल अभी दिमाग में आ गई, श्रीनगर सिटी में ये था जो लेडी हट, जानते हो उसको, तो हैव यू नोटिस्ड हाउ ही हैज़ ग्रोन, उसके आज 4-5-6 बड़े बड़े शोरूम्स हैं, हाँ, और वो जो मार्केट प्राइस है, जो उसकी अपनी प्राइस, उससे भी कम कीमत में वो बेच रहा है। हाँ, लेडीज सूट के साथ डील करते हैं ना वो, हाई, अभी भी हाई है। हाँ, अब उसके कंपटीशन में दूसरे भी उतर चुके हैं जो उससे कम करते हैं। इफ़ ही पोस्ट समथिंग फॉर 1200 रुपीज़, बिकॉज वो मेरे घर में चल रहा होता है, दैट्स वाई आई नो अबाउट। तो फिर उसके बाद दूसरा एक आता है कोई और यूट्यूब ये ना फेस इस पे इंस्टाग्राम पे, तो उससे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ कम में वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फिर तीसरा कोई आता है उससे और 50 रुपीज़। तो देन देयर कम्स अ पॉइंट, एक नया बंदा एक आता है इंस्टाग्राम पे, वही सेम प्रोडक्ट एटलीस्ट 500 रुपीज़ कम बेच रहा है, किसी लेडी हट से या किसी अदर और किसी और से। तो अब इंसान वहाँ पे सोचता है कि अगर ये इतने में बेच रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि समटाइम्स जो लेडीज़ हैं जो मेरे घर में है, या वो कहती हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो 2000 का होना चाहिए, ही इज़ सेलिंग इट फॉर 1200, ये कैसे कर रहा है? बट ही इज़ अर्निंग द मनी फ्रॉम द सोशल मीडिया, जो वहाँ पे वो कम कर रहा है उससे ज़्यादा वो वहाँ से कमा रहा है। ही इज़ अर्निंग मे बी 5 लाख 10 लाख फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतने व्यूज़ उसको आ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, एंड एवरी डे जब भी उसको वीडियो आता है नए फॉलोअर्स आते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये होती है मार्केटिंग स्किल, उसको वो मार्केटिंग सीखी, वो उसको पता है कि मुझे अगर मैं ये कम भी बेचूंगा, और वो गिफ्ट्स करता है, कुछ शॉल्स करता है, गिफ्ट्स करता है, दिस इज स्ट्रेटजी। बिजनेस प्रमोशंस थ्रू सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन होता है, रनिंग कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं दिखाता हूँ कैंपेन्स में, दिखाता हूँ आपको। इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक एटसेट्रा, एंड हियर आई हैव केप्ट सम। हाँ, कंटेंट क्रिएशन पता है,
वो बनाना है, वो आपकी खुद की कैपेबिलिटी है कि आप कितना बेस्ट कंटेंट बनाते हो। इसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज है यूट्यूब पे, ठीक है, वो भी आज लोगों ने बिजनेस बना दिया हुआ है। तो कैंपेन्स जो है, आपने जैसे कहा कि एग्जांपल मैंने रखी है यहाँ पे, फ्लोट ए बोर्ड कैंपेन एक हुआ था, पेपर बोर्ड बनानी थी, एंड मुझे पता नहीं है किस ईयर में हुआ, बट आई फाउंड इट समवेयर। तो बेवरेज चैलेंज हुआ, इन्होंने क्या कहा कि एक बोर्ड बनाइए एंड हैशटैग करके उसको अपलोड करिए। दे गेव ए यूआरएल एंड पीपल हैव टू अपलोड द जो भी उन्होंने बोर्ड बनाई थी उसका फोटोग्राफ, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था हर एक बोर्ड की वजह से अराउंड, मुझे नहीं पता कितना हो रहा था, बट 20 रुपीज़ आउट ऑफ दैट दे वर डोनेटेड टू सम परिवार आश्रम। तो उस टाइम पे ओनली 805 यंगस्टर जो थे उनको बेनिफिट हुआ उस टाइम पे इसका, जिनको जो उस आश्रम में थे, इट मस्ट बी सम ऑर्फनेज, तो वहाँ पे उनको किया गया। तो इस कैंपेन की वजह से फिर लेटर ऑन इन द मंथ ऑफ जुलाई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ।